Hello everyone, so welcome back to our channel. So today's topic in short writing is invitation and reply. So yes, for 3 marks short writing for latest pattern of CBSE class 12th, we have come up with invitation and reply short writing. So in this video you will understand the concept of writing reply and invitation. So for CBSE 12th class, as per latest pattern, it is of 3 marks. Earlier it was of 4 marks. So invitation and reply, how to write invitation and reply. In 3 marks you will get a question upon invitation and reply. So yes, exam is near, so I am providing one by one writing skill for class 12th CBSE. Watch this video till end to improve your writing skills and how you can write invitation and reply in exam of English. So let's start how to write invitation and reply. Invitation to near and dear ones we write on the occasions such as marriage, birth, engagement, death, public function, etc. is part of social etiquette, and invitation are of two types. So what is invitation and its format we will discuss. Like invitation we write to near and dear ones on the occasions like such as marriage, birth, engagement, death, public function, etc. It is kind of social etiquette. Invitation two types. Let's see the types. Invitation are of two types, formal and one is informal. So invitation we can write in two types, formal और informal. They can be printed on cards. ये cards पे छप सकते हैं. Drafted in the form of social letters. So invitation क्या होता है, जो हम अपने आसपास के या अपने लोगों को या अपने पास के और अपने प्रिय लोगों को लिखते हैं किसी खास मौके अवसर पर, जैसे कि बर्थ, एंगेजमेंट, डेथ, पब्लिक फंक्शन, पार्ट ऑफ सोशल एटिकेट है ये. और ये दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. सो इनविटेशन मार्किंग स्कीम एंड इट्स फॉर्मेट वी विल डिस्कस. लेट्स गो टू नेक्स्ट फॉर्मेट विच इज एन इनविटेशन शुड आंसर 5 W's. सो 5 W's का आंसर देता है इनविटेशन, देन इट इज द फॉर्मेट. सो व्हाट आर दीज W's? हु, किस, कौन, देन whom, किसको, एंड देन व्हाट मतलब क्या. तो ओकेजन होगा तो वो मैरिज का हो सकता है. व्हाट में आपको लिखना ओकेजन, क्या अवसर है, जैसे मैरिज, इंगेजमेंट, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप, ऑफिस, होम, बर्थडे, एनुअल डे ऑफ स्कूल और एनीथिंग एज पर क्वेश्चन. हु, जिसमें कौन करवा रहा है किसको, देन किसको बुलाना है, देन व्हाट इज द ओकेजन, देन व्हेन एंड वेयर, वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, देन नेम ऑफ द होस्ट एज यू कैन सी, name of invitee, the occasion, date, time and venue and any other details. So this was the format. You can write the formal invitation format is like occasion, then name of invitee, name of the host, then date and time and venue, then name of the chief guest, special invitees. In case of official invitation, then RSVP. RSVP means response please. It is a French term. We will see in example as well. Yes. So what is the example of invitation? Here you can say Mr. and Mrs. Rajkaran. Who? It is answering who. So request the pleasure of your be presence on the auspicious occasion of 5th birth anniversary. So what is the occasion? Birth anniversary of their son, उनके बेटे के, निखिल. अब जगह, where and when, at their residence. जो एड्रेस है 38 कमाल कुंज वाराणसी. when, so at 4:30 PM. और कब है, on 28 December 2000. एंड RSVP. RSVP का मतलब देखेंगे. RSVP is an initialism derived from French phrase response views plate meaning please respond to request confirmation of an invitation. So RSVP लिखेंगे, फिर मिस्टर एंड मिसेस राजकरण जो इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइटी का नाम, देन उनका कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देंगे. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन. दैट्स हाउ यू कैन राइट योर एग्जाम in examination invitation. So this is the invitation example. Let's see informal invitation. That was formal invitation. It is informal invitation, like we write it in a social letters. Yes. So in this format of informal invitation you have to write in a format of लेटर, सोशल लेटर, सामाजिक पत्र की तरह लिखना होगा. सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, जो ये लेटर बुलाने के लिए भेज रहे हैं अपने नियर एंड डियर को, देन डेट, देन
डियर यू विल राइट डियर, नेम ऑफ जिनको आपको बुलाना है, नेम ऑफ whom you want to invite. Then lines to start in an informal letter, you can start like you will be glad to know that. Then function or news you can write there in the letter of informal invitation. Then you will be pleased to know. That's how also you can start your letter of informal invitation. You will be know that. Then your occasion, your affectionately को लिखना है your affectionately. देन नेम ऑफ हु इज इनवाइटिंग एज गिवन इन क्वेश्चन, जो बुला रहा होगा वो क्वेश्चन में नाम दिया होगा उनका लास्ट में नाम डालना है. देन बॉडी कंटेंट वही बीच में आएगा. सो लेट्स सी 12th CBSE मॉक क्वेश्चन पेपर, दैट वाज इनफॉर्मल इनविटेशन. सो दैट वाज द क्वेश्चन लाइक Anita Amit has recently cleared the CBSE medical entrance exam. He wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College, Nagpur by throwing a party to her friends. Write an informal invitation giving details of the venue, time and date. Do not exceed 50 words. तो ये मॉक टेस्ट में आया था 12th CBSE के. इस क्वेश्चन में बोला गया है अनीता अमित रिसेंटली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और आपको एक लेटर लिख के इनविटेशन देना है, बुलाना है, बुलावा देना है, जिसमें आपको पार्टी करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी करना चाहती हैं. तो इनविटेशन इनफॉर्मल होगा एज रिटन देयर एंड डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. 50 शब्दों से ज़्यादा ना लिखें क्योंकि कम से कम लिखना है, 3 मार्क्स के लिए लिखना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. So the answer can be first of all sender's address Vasant Kunj New Delhi, then date January 30 2020, then dear friends लिख देंगे क्योंकि friends को बुलाना है. Then you can start your body. You all will be glad to know that I have recently cleared the CBSE medical entrance exam and got admission in Shivaji Medical College Nagpur to celebrate this occasion. इन्होंने एक पार्टी रखी है. We have organized party on, कब रखी है, January 31 2021 6 PM को एट उनके घर पे. देन यू ऑल आर इन्वाइटेड, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेज एंड ऑफ कोर्स नो गिफ्ट्स. ये लाइन सब लिख सकते हैं आप. देन योर्स अफेक्शनेटली लिख देंगे. देन नेम ऑफ द इनवाइटी जो बुला रहा है, अनीता अमित. सो रिप्लाई पे आते हैं. अब वो इनविटेशन खत्म हो गया हमारा. इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों देख लिया. अब देखते हैं रिप्लाई राइटिंग, कैसे रिप्लाई हम लिखेंगे. सो अ रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज मच फॉर्मल एज द इन्विटेशन इटसेल्फ. इन्विटेशन से भी ज़्यादा रिप्लाई फॉर्मल होता है. और इसमें अ रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज इसेंशियल टू अप्रिशिएट. इसमें हम होस्ट की फीलिंग को अप्रिशिएट करते हैं और उनको बताते हैं कि हम अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे. तो एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग द इन्विटेशन, दो ही चीज़ कर सकते हैं. हमें अगर इन्विटेशन आता है, बुलावा आता है, तो दो ही चीज़ कर सकते हैं. डू रिमेंबर टू इंडल्ज ग्रीटिंग्स लाइक बेस्ट विशेस. अब उसमें आपको बेस्ट विशेस देनी है अगर आप रिफ्यूज़ल भी करते हैं तो, इन केस यू आर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. देन द रिप्लाई शुड बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. आपको खाली बताना है आप जाएंगे या नहीं. रिप्लाई देना है, ब्रीफ कम से कम शब्दों में होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए. सो एग्जाम्पल लाइक ऑफ डिक्लाइनिंग, कि आप अगर मना करते हैं इनविटेशन को फॉर्मल में तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा. एज द प्रिंसिपल ऑफ अ रेप्यूटेड कॉलेज, एक आप रेप्यूटेड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं. यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट अ बुक एग्जीबिशन इन योर नेबरहुड. ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन. यू आर तरुण तन्वी. ये ऑल इंडिया एग्जाम में आया था जिसमें आप प्रिंसिपल हैं, आपको बुलाया गया है बुक एग्जीबिशन में. डू नॉट राइट टू मच. लेट्स स्टार्ट. सो आंसर कैन बी रिप्लाई टू इन्विटेशन, द हेडिंग, देन प्रिंसिपल ABC कॉलेज, देन डेट, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में अगर आप नहीं जा पा रहे तो वो लिखना है इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन सर. देन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल लाइन्स बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी. ये यहाँ थैंक कर रहे हैं. इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिविल क्लब बुक एग्जीबिशन बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट. तो कहीं और जाना है इसलिए वो इनएबिलिटी अपनी शो करके डिक्लाइन कर रहे हैं इस इनविटेशन को. आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग विद गवर्निंग बॉडी ऑफ आवर कॉलेज ऑन द सेम डे फॉर विच द इनॉग्रेशन इज शेड्यूल. उनको कहीं और काम है तो उन्होंने सिंपली छोटे और कम शब्दों में बता दिया कि वो नहीं आ पाएंगे.
देन योर फेथफुली, देन नेम, देन प्रिंसिपल, उनकी पोस्ट डेजिग्नेशन आ गई। सो लेट्स सी अगर हम फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू बी जज फॉर अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन STN's स्कूल। स्कूल में आपको बुलाया गया है जज करने के लिए लिटरेरी कॉम्पिटिशन को। सेंड अ रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। रिप्लाई भेजिए 50 शब्दों में। कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस देनी है एज पर क्वेश्चन। यू आर मोहन, मोहिनी आपका नाम। देन आंसर ऐसे स्टार्ट करेंगे, बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए वो। सो कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस ये टाइटल रहेगा। देन एड्रेस, देन स्कूल नेम, एड्रेस, देन सब्जेक्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन फॉर जजिंग लिटरेरी कॉम्पिटिशन। सर, I would like to express my gratitude to STN's school for inviting me to the judge for literary competition in your school. I confirm my acceptance for the same and will make sure that I am present there at the scheduled and date and time. So scheduled date and time में वो present रहेंगे। Yours sincerely मोहिनी, नाम लिख देंगे मोहन। This was the accepting invitation reply and reply of invitation accepting. Thank you for watching this video, and we are doing this series, short writing series, to improve. Like, share and comment and subscribe this channel. Next video on letter writing, which is most important for exam. So we are providing writing skills. Thank you so much for watching this video till end. I hope you all got understood how to write invitation and reply with example. Thank you so much.